Hello friends, how are you? Welcome to the Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Advancing the southwest monsoon season here. The advancing of southwest monsoon season. It is a rainy season from the most part of India. It starts with the inflow of the southern west monsoon, which strikes the coast of Kerala normally in the first week of June and cover to most of India by mid-July. And this weather continue till September. The arrival of this is a warm moisture-laden winds and varying at a total change in the weather condition. And there is arrived a case of sudden is the rain which is varying down to the temperature considerably. The decline in the temperature is between 5 Celsius to 10 Celsius. The sudden onset of rain is called to break of monsoon or the burst of monsoon. There is an important burst of monsoon. The arrival of this is a wind may be a decline by a week or two depending upon to the pressure conditions over northern plain or over to the Indian Ocean. The peninsular slope of the India is divided this southwest monsoon into two branches. Is there Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch? There is two branches of monsoon here, Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. There is important. The first point here, Arabian Sea. The Arabian Sea branch of the southern monsoon strikes the western coastal of India and causes heavy rain on the western slope of the Western Ghat. After crossing the Western Ghat, this wind is a causal less rainfall on the storm is a slope on the gain of temperature with a descending. There is most important and there is area is there for further now as the rain shadow zone. And this is explained by the interior part of the Maharashtra, Karnataka and Telangana get a averages is the rain from this band. And southwest is the monsoon strike along the coastal of the Surastra and Kuchacha and the pass over to Rajasthan over behind by the meet the Bay of Bengal branch. And this winds is a cause of disappeared spared rain in this state and western Himalaya region here. The next year, the Bay of Bengal branch is divided into two sub-branches after strike of Eastern Himalaya. There is the Bay of Bengal branch is divided into two sub-branches after striking Eastern Himalaya. One branch of moved to about the east-northern east direction and caused a heavy rain in a Brahmaputra valley and the northernest hill of India. The other branches have moved to about to the northern west along the Ganga Valley and the Himalayan range and causing to heavy and widespread rain over vast to the area. In this region, the amount of rainfall or decrease from the east to west owing to be a progressive decrease in humidity of this wind here. There is an important also here. The main characteristics of the southwest monsoon here. The southern west monsoon character here. The first character here, this wind is generally strike the Indian coastal in the first week of June. But there arrive and the depth there may be falling time even it may be declined. And second here, there may be a dry spell in the between rainy periods. Such a long dry spell may even lead to the failure of crops. At the time, this wind is a skip over to the content of regions without any case. The amount and timing of rainfall are intervings in the durations of wet and dry spell and varies from year to year. And this is known as the variance of the monsoon year. The next point here, the spatials is distribution of the rainfall in a uneven. Some region may be receive heavy rain, while the other will have to be contented with the margins or the scanty rain. And the last one, generally this is wind start is retreating by the end of September, but sometimes there is a depth may be a decline till the October and they might be retreat to the even much of earlier year.
In this map, there is a India temperature during to the hot season. There is a most important here. A hot season here represent. There is a maximum temperature show in the northern side. There is a Chandigarh is a 37.5. There is a most important Delhi, Lucknow 35 Celsius temperature is very rare. There is important Bhutan also 30-degree temperature, and the rising on the temperature of 40 here on the Ahmedabad and Bhopal's Nagpur, Hyderabad 42 temperature is very rare, and other is here is the hottest state here or Rajasthan and Jaipur. There is the most important hot season in this map. The next map here show the wind direction here. The wind direction in the hot season day, there is the most important on show. There is the Bay of Bengal on the Goings Bay, and there is a northern side is also is a flow in this air winds. There is a most important map show in the wind direction here. The next year, a maximum rainfall southern based monsoon. There is the most important rainfall in the centimeter here. There above a 400 is the Cherrapunji. Cherrapunji is the most important here. Show the 400 above the rain here, and also here important of the 240. There is the Kerala side, and there is the most important also here the 0 to 20. There is Rajasthan side. There is important. The highest is Cherrapunji and lowest here Rajasthan. There is a most important map show the rainfall southern west monsoon here. Here show there is the main feature of the advancing southern west monsoon season here. There is an important low pressure condition over the northern western part of India and high pressure condition over to the sea. The generally wind direction are particularly in the Arabian Sea and the Bay of Bengal is the southern west in the northern east. And the cause of wind spread is a rain intercepted with the dry spell here. The onset of the monsoon is in the first week of June and withdraw by the end of the September. The weather is generally hot and humidity during to this season. The important point here on this box, note down your notebook. The next one there is the returning of a southwest monsoon season here. The southwest is a monsoon started returned in the first week of September from Pakistan border in the northwest India. Thus, this is a wind withdraw earlier from the region where to the reach the last. The, the retreat is of this wind is a take place due to the beaking of low pressure area over to the northern western parts, and this happened due to the low temperature causing by the apparent a shift of the sun toward to the equator, and also owing to be a bit is a very spared or rain bearing down to the temperature precipitably is a consequence, and the air pressure start to decreasing. Such a change in the pattern of atmospheric pressure causes a southwest monsoon to withdraw. Hence, this period is known as the season of returning southwest monsoon by the end of October, and this wind is a retreat from to most of northern India as a result fear of weather condition and probably over this region. There is a important. The low pressure area is blowing over to the northwest India is transferred to be middle of the Bay of Bengal by the end of October. As a result, this is an unstable condition. A cyclonic storm originates in the Bay of Bengal, and this cyclonic storm strike along the eastern coastal of India, causing a widespread rain in the coastal region. Sometimes very severe storm cause a damage to standing crop and cattle property and the line of transport, communication, and even electricity. Tamil Nadu is a coastal receive a maximum of its rainfall during to October and November. The period of returning monsoon they are important. And the next is the most important air box, the main character feature of returning southern monsoon season are. There is a most important point here. A beacon of the low pressure area over to the northwest India here and fall in the temperature throughout the India. Shifting of low pressure area to be south and
origin of the cyclonic storm in the Bay of Bengal are causing heavier rain and the damage to the crop and property along the eastern coastal of India. उसके पश्चात हमारे समक्ष आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। देखिए आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु क्या है। कहते हैं भारत के अधिकांश भागों में वर्षा इस ऋतु में ही होती है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो केरल तट पर जून के पहले सप्ताह में पहुंचता है के आगमन से आरंभ होती है और ये पवनें भारत के अधिकांश भागों में मध्य जुलाई तक पहुंच ही जाती है। यानी देखा जाए तो अधिकांश भागों में जो है जुलाई तक पहुंच जाती है और ये ऋतु जो है सितंबर माह तक रहती है। कहते हैं अंधता से लदी इस गर्म पवनों से जो है मौसमी दशाएं पूर्णतः बदलती जाती है और इन पवनों के आने से अचानक वर्षा होने लगती है जिससे तापमान काफ़ी कम हो जाता है और तापमान में गिरावट जो है 5 से 10 सेल्सियस तक होती है। अचानक होने वाली इस वर्षा के मानसून का फूटने या फटना भी कहते हैं। देखिए अचानक जो वर्षा होती है कई क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो है बादल फट जाती है और यहाँ बादल फटने का अर्थ ये होता है कि वहाँ पर जो है मूसलाधार पानी की बरसात होने लगती है जिससे कि आसपास के क्षेत्र और जो है घरें काफ़ी नुकसान में पहुँच जाती है। यानी यहाँ पर बताया गया मानसून का टूटना या फटना इसका मतलब है कि हैवी रेन वहाँ पर होने लगती है और देखा जाए तो पूरे के पूरे जो है बादल ही वहाँ पर गिर जाती है जिससे कि जान माल की काफ़ी नुकसान होता है। उसी को हम बादल फटना भी कहते हैं। इन पवनों के आगमन में 1 या 2 सप्ताह की देरी जरूर हो जाती है और ये जो है उत्तरी मैदान तथा हिंद महासागर पर वायु की दाब की दशाओं पर निर्भर भी करती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति इन दक्षिण पश्चिमी मानसून को 2 शाखाओं में विभाजित कर देती है। एक तो होता है अरब सागर की शाखा और दूसरा जो होता है बंगाल खाड़ी की शाखा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानसून को 2 शाखाओं यानी 2 जो है ब्रांचेस कर दिया गया है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा जो है बंगाल खाड़ी का ब्रांच। तो देखिए देखते हैं कि अरब सागर की शाखाएँ क्या कहती है। यहाँ पर जो आया हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर की शाखा भारत के पश्चिमी घाट से अवरोध पाकर जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम ढलानों पर भारी वर्षा करती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण अरब सागर की शाखा है जहाँ पर देखिए कि अवरोध पाकर जो है पश्चिम घाट के पश्चिमी ढलानों पर काफ़ी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को जो है पार करने के बाद ये पवन जो है पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा करती है क्योंकि उतरते हुए उनके तापमान में वृद्धि होने लग जाती है और इसलिए इन क्षेत्रों को जो है वृष्ट छाया क्षेत्र भी कहते हैं। वृष्ट छाया क्षेत्र कहना आम बात है और इससे यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र कर्नाटक के आंतरिक भागों व तेलंगाना में इन पवनों में कम वर्षा क्यों होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना में इन पवनों से कम वर्षा क्यों होती है, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है यहाँ पर। कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जो है सौराष्ट्र एवं कच्छ के तट के आगे बढ़ती हुई राजस्थान के ऊपर से गुजरती है और आगे चलकर यह खाड़ी की बंगाल की शाखा से मिल जाती है और ये पवनें इन राज्यों के पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में दूर दूर तक वर्षा करती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारा अरब सागर की शाखा। अब देखते हैं बंगाल खाड़ी की शाखा क्या कहती है। कहते बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अवरोध पाकर 2 उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी बंगाल की खाड़ी 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा पूर्व तथा उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बहती है तथा यह जो है ब्रह्मपुत्र घाटी या भारत की उत्तर पूर्वी शाखाओं में भारी वर्षा करती है। दूसरी शाखा जो है उत्तर पश्चिमी की ओर गंगा घाटी व हिमालय की श्रेणी के साथ साथ आगे बढ़ती हुई दूर दराज के क्षेत्रों में पश्चिम की ओर भारी वर्षा करती है और इस प्रदेश में जो है वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमश कम होती ही जाती है क्योंकि इन पवनों की आर्द्रता में जो है क्रमिक कमी आ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता। देखिए ये पवनें जो है भारतीय तट पर सामान्यतः जून के पहले सप्ताह में पहुंचती है लेकिन उसके आगमन और वापस लौटने का समय निश्चित नहीं होता है। ये वायु दाब पे जो है डिपेंड करता है। वर्षा काल में सूखे के दौरान भी आते हैं, यानी जब वर्षा काल में सूखे के दौर भी आ जाते हैं तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखते हुए कि भारत कई क्षेत्र जो है सूखे के प्रकोप में होते हैं और इन सूखे के दौरे से भी कभी कभी फसलें नष्ट भी हो जाती है और कभी कभी ये पवनें जो है कुछ प्रदेशों के ऊपर से गुजर जाती है और वर्षा नहीं करती है। गुजरती तो जरूर है
लेकिन वर्षा नहीं करती है। यहाँ पर जो दर्शाया गया है मैप बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है, जिसमें वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ होती है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको मैं बताऊं कि चेरापूंजी जो होता है सबसे अधिक रेनफॉल होती है, जिसके विषय में हमने पढ़ा भी है, और सबसे कम जो होता है राजस्थान होता है। तो इसी जो है बात को यहाँ दर्शाया गया है कि 0 से लेके 20 जो है सेंटीमीटर वर्षा जो होती है राजस्थान क्षेत्र में आप देख सकते हो। और देखा जाए जो है 400 से अधिक जो वर्षा की जो माप होती है वो जो होती है आपको केरल साइड भी आपको नज़र आ रहा होगा, बंगाल के पास में भी। लेकिन सारे साल वर्षा जो होती है वो चेरापूंजी के साथ होती है, जिसको जो है 200 से 400 दर्शाया गया है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मैप में दर्शाया गया है। देखा जाए तो पूरे भारत में जो है अगर देखो तो इसमें जो है मौसमी का जो है यहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा को दर्शाया गया है। लेकिन निचले क्षेत्र में आप देखोगे तो 0 से जो है 20 सेल्सियस तापमान के ऊपर दर्शाया गया है, यानी 20 से 40 को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मैप में। कहते हैं अगर देखा जाए विशेषताओं के अंतर्गत वर्षा की मात्रा तथा समय व वर्षा व सूखे के दौरान के समय में साल दर साल जो है विभिन्नता पाई जाती है, और इसे मानसून का जो है मनमौजी होना भी कहते हैं, क्योंकि ये साल भर के दौरान ये साल जो होना मनमौजी कहलाना आम बात है। ये पवनें जो है दिसंबर के अंत तक पीछे हटने लग जाती है, और लेकिन कभी कभी ये अक्टूबर माह तक जो है पीछे हटती है, या कभी सितंबर से पूर्व की ओर पीछे हट जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। और दर्शाया गया है इस बॉक्स में कि भारत के जो है उत्तर पूर्वी भागों में जो है निम्न दाब की दशाएं, और भारत के जो है घेरे हुए जलीय भागों पर जो है उच्च दाब की दशाएं दर्शाया गया है। कहते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पवनों की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ होती है, और इससे जो विश्व प्रदेशों में वर्षा होती रहती है। लेकिन वर्षा काल के बीच में सूखे के दौर भी आता रहता है। मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है तथा दिसंबर के अंत तक पीछे हटने लग जाता है, और इस ऋतु में मौसम जो है सामान्यतः गर्म एवं आर्द्र हो जाती है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते दक्षिण पश्चिम मानसून पाकिस्तान के जो है सीमावर्ती क्षेत्र व उत्तर पश्चिम भारत से दिसंबर से जो है सितंबर के पहले सप्ताह के पीछे हटने लग जाते हैं, और यहाँ वे सबसे अंत में पहुँचते हैं। और इन पवनों के पीछे हटने का मुख्य कारण जो है भारत के उत्तरी पश्चिम भाग के जो है निम्न दाब क्षेत्रफल का कमजोर होना होता है। कहते सूर्य का जो है विषुववर्ती वृत्त की ओर आभासी गति तथा विस्तृत वर्षा के कारण जो है तापमान के नीचे गिरने के साथ वायु दाब धीरे धीरे ऊंचा होने लग जाता है, और वायुमंडलीय दाब के ढांचे में परिवर्तन के कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटने लगता है। इसलिए इन अवधि के जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को पीछे हटना कहते हैं। और इसके पश्चिमी जो है परिणाम स्वरूप इन ऋतुओं में जो है स्वच्छ मौसमी दशाएं भी पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत के उत्तर पश्चिम भाग के जो है निम्न दाब क्षेत्र जो है अक्टूबर के अंत तक बंगाली खाड़ी के मध्य स्थानांतरित हो जाता है, और इन अस्थायी दशाओं के कारण बंगाल की खाड़ी में अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान भी पैदा होती है। और ये चक्रवाती तूफान भारत के जो है पूर्वी तट के साथ साथ तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा करती है, और कभी कभी जो है अत्यधिक तीव्रता वाले तूफान से जो है खड़ी फसलें, पशुएं, संपत्ति और यातायात संचार और विद्युत लाइनों की भारी क्षति पहुंचती है। कहते तमिलनाडु तट अपनी वर्षा का अधिकांश भाग अक्टूबर व नवंबर व मानसून के पीछे हटने की ऋतु में प्राप्त करता है। यदि इस बॉक्स को अगर हम देखें तो कहते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो है निम्न दाब क्षेत्र जो है का कमजोर होना, संपूर्ण भारत में तापमान का गिरना, और निम्न दाब क्षेत्र का जो है दक्षिण की ओर खिसकना, और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफानों का पैदा होना, जिनसे भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में फसलों व संपत्ति की काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। कहते हैं इस टॉपिक में हमने बहुत कुछ जाना, जो है इसकी मानसूनी के क्षेत्र को भी देखा, पवन के दाब को भी हमने पर देखा। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपान सेंटर के साथ बने रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ भी, क्योंकि दूसरे बच्चों का भी भलाई करना आपका दायित्व हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना बच्चों को बताना है, ना समझाना है। आपने सिर्फ इतना कार्य करना है कि जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। जिन बच्चों को देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य किया। कहते हैं अपना कार्य करना ही परम धर्म है।
ठीक है दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी वीडियो का देखना चाहेंगे तो अगर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो शायद आपको तिरपान सेंटर ना मिले। तो इसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर जो है प्ले लिस्ट में जो है आपको सारी वीडियो अलग अलग नामों से वहाँ पर विद्यमान है, और इस सारे फोल्डर में आपके लिए हर एक समस्या का जो है समाधान है। तो आपको जो सब्सक्राइब करके रखना भी आपकी समझदारी का पहचान है।